Okay, so let's we start the statistical inference first. And in statistical inference, so what do you mean by statistical inference? That is the process of making guesses about the truth of a samples. Okay, so suppose we have a population. Okay, so that is whatever the truth that is not observable, means some statement what we are not able to directly observe that statement or verify that statement. Then what we'll do, we'll take a sample from that population for which we want to generalize or we want to check that statement, and then we have to calculate some statistics, means that is we have to calculate sample mean, sample variances, or sample median, or whatever the sample mode, whatever we need for our analysis part. So these are some formulas for using calculating the mean and variances for the sample only. So here we have put it like, suppose if you are able to see that mu head or some sigma head. So head mean that estimated values. This is the estimated values from the mean only. So here it's the same thing, here they have put it, but here there is no head. So this simple, this means the true values of the populations. So these are the population parameter, and we want to test these parameters by using the sample only. So sample statistics, that's only the same thing in the population, but it's the by using the sample means. Like suppose population mean and sample mean, so both are the mean, but sample mean, sometimes if we take the 100 samples, then we can say that the sample mean is the unbiased estimate of the population means only. So any summary measure calculated from data could be a mean, a difference in means or population proportions and odd ratios or correlation coefficient, whatever. For example, that mean vitamin D level in a sample of 100 men in the is 68 nmol liter, or the correlation coefficient between vitamin D and function in the sample of 100 men is this. So same thing like for the population. So that is called the population parameter. So the true value or true effect in the entire population of our interest. The true mean of vitamin for mean aged, middle aged and older European men is 62 like suppose, and the true correlation coefficient correlation vitamin D and cognitive function in middle age and older age, like suppose this one. So there is some, then we have to make some hypothetical data that is loosely based on the, so this data we have taken from this one study, from there only they have taken this data, and then they have estimated that what is the average serum vitamin D in middle aged and older European men. So they have calculated the sample static, that is the sample mean, and then how hypothesis testing, that is R vitamin D level and conjugate level function are correlated, like this is the hypothesis. Then sample status correlation coefficient between vitamin D and conjugate function measured by the some functions they have used for measuring this thing only. So then they have plotted the data and they want to check the normality conditions. So if you see the data, it's not like normally distributed. If is, as I study told, it goes early peak and then go to the slowly down only. So it's showing that some positive skewed type data only. Skewed, then we can see that if mean median mode we, if we compare, then we are able to find out it's positive or negative, whatever. So it's showing that positive skewed data is there. For the another variable, it's showing that if you see approximately normally something or maybe the exactly normal distributed line. Okay. So the statistics follow the distribution too, but the distribution of statistics is a theoretical constructions. Statistics ask a thought experiment, how much would the value of a statistics fluctuate if one could repeat a particular study over and over with different sample of the sample size. Then the answer this question, the statisticians are able to pinpoint exactly how much uncertainty is associated with a given statistics. So suppose if we are able to, suppose first that we have taken a sample, yes, and then again we have taken sample, again we have taken like see 1000 times, 100 times we should repeat, then how many samples be following the normality conditions, or what the interval they have true mean values lying in that interval only.
So two approaches to determine the distribution of statistics. One is computer simulation and another is the mathematical theories. So computer simulation means repeat the experiment over and over again virtually. More institutive can directly observe the behavior of the statistics. Theoretically, proofs and formulas. More practice, we use formula to that one only. So these are the two way we can use. Suppose we will see the some examples. If you see here, how many heads come up in 100 coin tosses? So flip a coin virtually and then count. So flip a coin 100 times, count the number of heads, and then repeat this over and over again a large number of times, nearly 30,000, and then we'll plot the 30,000 results only. So if we plotted, so if we suppose we have tossed 2 times, 3 times, so maybe 3 headed come, 1 head comes. So if we repeat this experiment, it's going through. So it's what it's saying. It's we can observing here that if we repeat if a large population is there, sample size is large, or population is large, then it following the normal distribution. So if here they are saying that if you take sample and more samples, so in statistics thumb rule is that it is greater than 30, then the sample follow the normality conditions. Okay, so if less than 30, then we say that we have the some, it may be follow or maybe not follow, maybe the single samples also follow the normal distribution, we can't say that. So if here they have repeated the experiment 3000 times, 30,000 times I think, and then they are able to find the normal distribution. Otherwise, tossing a coin, which distribution it follow? If you toss a coin, what type of the outcome of a coin toss? No, suppose we are conducting an experiment like coin. So what output of that coin is head and tail? Head and tail, okay na? So it's like a binary outputs only. So it follow the normal distributed, that binomial distributed only. So binomial distribution. So if small samples, then it's following the binomial distribution. So here by computer simulation, we are able to find that if we repeat a experiment, even that some small experiment is following binomial distribution, but large, then it converting to normal distribution. So the binomial is a limiting case of normal. If we increase the sample size n, then binomial is converted to the normal distributions. So we usually get between 40 to 60 heads within we flip 100 coins, but it's extremely unlikely that will get 30 heads or 70 heads. Didn't happen in 30,000 experiments only. Same another they have repeated, especially the underlying distribution of vitamin D in European men age 40 to 79. So first we have seen that it was the right distribution with the standard deviation 33, true mean is 62. This is the arbitrary, doesn't affect the distribution. Okay, now you select a random sample of 100 virtual men from the population and then calculate mean vitamin D for that sample, and then repeat the step 2 to 3. Means again we have to take the samples, again we have to take the samples, again we have to take samples for large number of times, suppose like 1000 times. Explore the distribution of the 1000 means. So 1000 means because we are taking a single mean, in that mean there are the small number of peoples are there, but we are taking that samples 100 times, 1000 times, so we have the 1000 means. Okay, and then if you see here, it's following the normal distribution. So a sample which have the sample mean and the data is not following the normality condition, it is by the positive skewed data, but same values means like mean 62 and standard deviation 33, and we have simulated data, and then the data when we have plotted 1000 times, then that same mean value and standard deviation is converted to the normal one only. So now normally distributed, even though that is the right skewed, true mean is equal to true mean. Now whatever the population mean, it's become the sample mean. This sample mean become the population mean if we repeated the experiment 1000 times. Okay, so standard deviation is the standard deviation of statistics called the standard error.
So standard deviation of mean is equal to standard deviation divided by the square root of n. So if there the standard error is 1.7, then the distribution is like this. If we increase, here we have increased sample size up to 400. 100, the mean was 62, standard deviation was 33. As we increase the sample size, now standard error become 1.7. If we increase more standard deviations, what the changes is coming here, the distribution is coming flat only. Okay, so as the standard error as standard is less, is going to vary that is smoother only, but as we have increased the sample size, sorry, that standard deviation, it goes to flatter one only. Okay, so same concept we can, if we, this was the computer based simulation based. So simulation based, even whatever the distribution the following, say single sample, whatever the distribution is following, if we repeat our sample 1000 times or 2000 times or large numbers only, then it may be going to convert in the normal one only. Another way, that is called the mathematical way. So mathematically, how we can convert our distribution into the normal one only. So it is, if of all possible random samples, each of the sample size n are taken from a population with a mean mu and standard deviation sigma, then sampling distribution of the sample means will be like mean will be mu, standard deviation is equal to standard deviation sigma by root n. We approximately normally distributed regardless of the shape of the parent population. So if we have taken a sample from a population, it is not normally distributed, but we are repeating that samples more times only, then it's going to be normally distributed only. Okay, so again the normal distribution we come to back only. So this is a symbol we use for the population only, or if we put here the sigma, they have put it here x, means that they are saying that this is the sample mean, sample standard deviation. Okay, otherwise sometimes some book, textbook you will use, they mostly use x or s for sample, mu or sigma for population. Standard deviation is standard error of mean for computational with repetition and the mathematical theorem central tendency. If we are not doing repetition, we can go for that formula. Are you saying that? Yes. No, if you opt for that formula, Then without repeating only. Without repeating means that yesterday we discussed that standardization or normalization. Right. So yesterday I tell one formula, that is xi minus x bar divided by the standard deviation. So that is the center limit theorem formula only. So here same way we are going to do that one only. So computationally we are not following any theorem or anything, just only we are repeating the samples only. Mathematically we go for the central limit theorem and we use the central limit theorem, and then we will get the data, normalized data there. So how we'll do this one, we pick any probability distribution and specify mean and standard deviation of for that distribution. I tell the computer to randomly generate 1000 sample observation from that probability distribution, and then computer is more likely to split out values with the high probabilities. Plot the observed values in a histogram, and next tell the computer to randomly generate 1000 averages of two randomly picked values from that probability distribution and plot the observed value in the histogram. So then repeat the steps, means 1000 means 10 times we have to repeat, or 100 times, 1000, whatever the times we have to repeat, same thing only. And then if you see, because we are using the central limit theorem, so central limit theorem itself converting the sample the data into normalized. Now if you are using the normalized only, so it will be should be the uniform. So if you see, almost it's giving same thing only. There some samples are not, some samples are over that, but it's giving the approximately uniform for everyone, because we are using the central limit theorems.
in itself computer, but using the central limit theorems only. And then we have in that was the this is a sample just only from the original distribution, that is 0 and 1 only. Okay. Now we have taken 100,000 observation of average 2 from a uniform distribution. So previously average, that is mean, was 1 only. Now average we have increased 2, then we have increased average 5, and then we have increased the average to 100. So as we increases the average mean value, and we have taken the same samples, but it's going to be from uniform to normally distributed data. Okay. Same thing, suppose like now we are generating a data from exponential distribution, and we want to see up to how long, if we repeat the experiment, it will go to the normally distributed. And then I will tell you the significance of this, why we are do this one only. So if you see that as we increasing the average value, it's going to shifting to normal sides only. Some same thing for the binomial distribution. So if we use the central limit theorem totally by mathematical, then what we can do, for a small sample, the standard deviation is an implicit estimate of the true standard deviation. This implicit changes the distribution and the t-ratio. So central limit theorem will convert our data in normals if we have the large sample size. If we have the small sample, then it will give you the t-test, t-distribution. Okay, so that's why when you go, maybe you have read some hypothetical testing of hypothesis, in testing of hypothesis, that z-test, then for some similar conditions that t-test, or then pair t-test, then ANOVA. So z-test and t-test, the one basic difference was the sample variance, or should be the known, population variance, population mean variance, or standard deviation should be the known, or sample size should be the large. Then we use the z-test. If sample size is small means less than 30, then we using the t-test. Yes. So the t-distribution approach a normal distribution for large n greater than 100, but has further tail for the small n if less than 100. If the underlying distribution non-normal, then distribution of the means may be non-normal. So for standard error, for a given value, its standard deviation divided by the square root of n. It is the standard error. A measure of the variability of it, or for what purpose we use the standard error? Measure the sample statistics. Okay. Then inverse of the sample size, measure of the variability of a statistics, all of the above this. So for all this purpose, we can use the standard error. Sample statistics, it may be the sample statistics when we go for the sample statistics, population statistics, population parameter and sample parameter. So sample mean, sample proportion, difference between means, difference between the proportion, odds ratio, risk ratio, correlation coefficient, regression coefficient, all this type of the our sample statistics. So why we did all these things, simulations only, or why we use the central limit theorem? Okay, because in statistical inference, whatever the testing we are going to test the hypothesis, it's depend totally on the samples only. That is, statistical inference is the process of explaining the sample about the population. So because sometimes it is not possible to count whole population. Okay, so what we can do, we will take a sample, and that sample will be the representative of that population. So how it will be representative? If computationally we do and that more samples only, otherwise, so we'll take some samples, and that the mean of that sample should be the some distribution, following the some distribution. Because if it's not following the any distribution, then we are not able to find out the, because one statistics values we can find, that is, we say that the calculated values or observed values. One values we have to know that is, we say that the test values or table values. Okay, yeah, computerized values, that is, we say that
alpha level of the alpha values, some values will be there only. So by for comparison of that one only, we know the what is the distribution of our sample means. So as we repeat 100 samples, we take 100 samples, and for every samples we take a mean. So now we will get a sample of means. So sample of means also will follow a distribution. So it's saying that if you're repeating the more samples, 1000 samples or 2000 samples, then it automatically will convert in the normal distribution. If you have a single samples or two samples, only small samples, then use the center limit theorem, and then it will converting the normalize the data and it will converting the your normal distributions. Okay, so that's why it's showing both the way, computationally by simulation or by center limit theorem. So we need to know the sampling distribution. Sampling distribution means that distribution of sample means, whatever the means, whatever the samples we have only in our hand only. So again they're repeating for the computational process simulation procedure for the correlation. I'm not going to this, just forwarding only this one only, and coming to point what I want to show you. So after finding the sample mean, we have to estimate what is a good estimate for a true mean vitamin D in the population. So how we estimate this mean only, because one sample we have taken, it is giving some different mean, another sample we have taken, it is giving a different mean. So suppose 100 times if we taken the samples, so out of 100 times, how many means we, that is the actual means, it's near to the actual mean, or it is the estimate of our true means only. So that is we can find out by the confidence intervals. So for that purpose we use the confidence. Suppose confidence interval give you limit, lower limit and upper limits. Can you give some examples to elaborate it? Maybe it will come here as well. So the confidence interval for this one, suppose like here we are taking this values, this mean values plus minus margin errors only. So capture the true effect. For example, the true mean, most of the time a 95% confidence interval should include the true effect about 95% of the times. 99 means 99% of the time. सर ये है आपको समझ आ रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा बिल्कुल. अभी तीसरा आएगा समझ. So like see here there 68, 95, 99.7 rule for normal distribution. These are the 95% chance that the sample mean will fall within two standard error of the true means. So if the true mean is 62, okay, and then plus minus whatever we are doing here, that is plus minus means lower limit and upper limit we are going to calculate. 2 into 3.3, that is 3.3 is our standard error. Okay, and 2, why this is the 2 sigma levels, 2 sigma standard deviations. So it's saying that 90, 98, 95, 68, 95 and 99% जो रूल्स है, अगर 95 पे है तो हमारा 2 सिग्मा होगा, अगर 99 है तो 3 सिग्मा वैल्यूज के साथ में होगा. तो अगर हम 2 सिग्मा वैल्यूज के लिए निकाल रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. अगर 3 सिग्मा के लिए निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे. अगर 1 सिग्मा के लिए निकालेंगे तो हमको 1 से मल्टीप्लाई कर दे. 1 सिग्मा के लिए कितना परसेंटेज होगा? 68% चांस होगा. 2 सिग्मा के लिए कितना चांस होगा? 95% चांस होगा. 3 सिग्मा के लिए कितना होगा? 99% चांस होगा. ये एक सम रूल है इसकी. अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 55.4 टू 68.6% दो लिमिट हमें मिलेगी. इन लिमिट के अंदर अगर हमने एक 100 टाइम्स सैंपल को रिपीट किया तो जो हमारा मीन है वो इस वैल्यूज के बीच में लाई करेगा 95%, यानी कि टोटल हमारे 99 मीन सैंपल मीन्स जो होंगे वो इस लिमिट के अंदर लाई करेंगे. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमको ये बताएगा कि जितने परसेंट पे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हैं उस परसेंट के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी. जो लोअर एंड अपर लिमिट होगी वो उसके अंदर कितनी बार लाई करेगा. अब से यहाँ पे हमारा 62 ट्रू मीन था, तो 62 जो हमारा 62 जो ट्रू मीन है वो लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, भी हमको यहाँ से पता चल गया. आ रहा है लिमिट के अंदर या नहीं आ रहा है. सही सर. तो लोअर लिमिट है 54, 55 और अपर लिमिट है 68, तो विद इन द लिमिट हमारा मीन है. सही. हाँ बताइए. 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 सिग्मा जो है
जो सिग्मा से मतलब ये है कि जो एरिया अंडर द कर्व है, कितना एरिया, 1 सिग्मा कितना एरिया कवर करेगा, 2 सिग्मा अंडर द एरिया कितना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बेस से जो सिग्मा वैल्यूज हैं, सिग्मा से मतलब ये है कि जैसे हमने भी जो सबसे शुरू में हमने बताया था कि सिग्मा की वैल्यू क्या करेगी, जो आपका जो नॉर्मल कर्व है उसको फ्लैटर करेगी या फिर एक्सपेंड करेगी। जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड एरर को बढ़ाएंगे हमारा फ्लैट होता जाएगा, जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यूज को हम कम करेंगे वो कम होगा। तो उससे मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू कम होगी, एरिया अंडर द कर्व जो हमारा कम होता जाएगा। तो जो भी हमारा सैंपल मीन, जो हम सैंपल मीन है जिसकी हम लिमिट निकाल रहे हैं, उसका चांस कम होता जाएगा। तो पहले के लिए कितना है, 1 सिग्मा के लिए कितना है, 68%। यानी अगर 100 टाइम्स हमने रिपीट किया अपने सैंपल्स को, तो सिर्फ 68% पॉसिबिलिटी है कि वो 100 टाइम्स रिपीट करने मतलब ये, जिसे जो यहाँ पे हम जो सैंपलिंग कर रहे हैं, हमारा जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है वो सिर्फ सिंगल सैंपल के लिए नहीं है सर। वो क्या है कि जो कॉन्फिडेंट इंटरवल कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि 95% हमारा कॉन्फिडेंट है कि जो हम मीन निकाल रहे हैं वो ट्रू मीन के इक्विवेलेंट होगा अप्रोक्सीमेटली। 99 का मतलब हो गया कि 99% हम सही होंगे, एक मतलब तरीका। तो जो हम 100 टाइम्स रिपीट करने के बाद कर रहे हैं, यानी कि जो हमने जितने भी सैंपल लिए हैं, अगर उस सैंपल को रिपीट किया जाए, इसीलिए जो सैंपल जो इन्फ्रेंस है, इन्फ्रेंस किसी एक सैंपल के लिए नहीं है। अगर बाई चांस वो सैंपल हिट करेगा, बाई चांस सैंपल हिट नहीं करेगा, वो रिपीटेशन होगा। तो अगर आप रिपीट करोगे तभी आपको वो ट्रू मीन मिलेगा। यहाँ पे इसीलिए हम परसेंटेज 100% और 99% जो बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर इस प्रोसेस को अगर रिपीट किया जाए तब ये उसी में से, जिसे एक पॉपुलेशन है 1000 की, 1000 में से पहले आपने एक सैंपल लिया 10 का सैंपल लिया, उसका एक मीन वैल्यू निकाल लिया, फिर एक सैंपल लिया, कोई भी वो भी डाल सकते, वो उसका एक सैंपलिंग प्रोसीजर अलग है, विद रिप्लेसमेंट सैंपलिंग, विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग। नहीं सर, जो 1000 पहले ले चुके हैं, 1000 एक लिया, वो 1000 हमारा सैंपल नहीं था, वो हमारी पॉपुलेशन है, जैसे उसमें से 10 ले लिया, सही सर, सैंपल 1 हो गया। अब उस 10 को वो 10 जो हमने लिए थे पहले, आप उसको उसके अंदर वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये दो प्रोसेस है सैंपलिंग का, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर आपने इसे विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप उस 10 को फिर से उसमें वापस दे रहे हैं, फिर रैंडमली 10 ले रहे हैं, फिर 10 ले रहे हैं, तो आपने सपोज करिए ये 10 टाइम रिपीट किया, ये आपने 100 टाइम रिपीट किया, तो जो पूरा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है वो डिपेंड करता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सैंपल मीन के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इसीलिए हम क्या करते हैं, सैंपलिंग में पहले हम सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो अगर वो सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, नॉर्मल टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो वो नॉर्मल कब होता है, उसकी सिर्फ 2 कंडीशन होती हैं कि या तो सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए आपका, या फिर पॉपुलेशन का वेरिएंस पहले से हमको पता है और हमको ये पता है कि पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल है, तो फिर उसमें से जो सैंपल ले रहे हैं वो भी हमारी नॉर्मल होगा, सही सर। तो ये 2-3 कंडीशन है, जो भी मैं हेट्रोजेनियस हो तो बार रिपीट करना पड़ जाएगा। या फिर सैंपल साइज इनफ है, लार्जर देन इनफ का मतलब ये होता है कि स्टैट्स में कहते हैं ग्रेटर देन 30 है, तो वो ऑब्वियसली मान के चलते हैं कि ये जो है बाई सेंटर लिमिट थ्योरम जो है ये कन्वर्ट कर देगा अपने आप को नॉर्मल में। अगर लेस देन 30 है, मतलब 20 है या 25 है जैसे, तब हमको अगर पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं, और पॉपुलेशन वेरिएंस भी अगर हमको नहीं पता है, सीधा हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो नॉन सेंट्रलाइज टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो भी एक तरीका से सिमेट्रिक होता है। उसकी एक खासियत ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह वो भी सिमेट्रिक होता है। 30 का रूल कुछ मैथमेटिकली होगा, इसका कॉन्सेप्ट मुझे इतना ज्यादा देखिए सर, अभी जो मैं दिखा रहा था इसमें अभी जो मैंने कहा कि एक जगह जो मैं कर रहा था, जिसमें 100 का दिया हुआ है कि अगर सैंपल 100 लेस देन 100 है तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे, बट ज्यादातर पे ऑपरेशंस जो होते हैं ये सारे वो ऑपरेशनल, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा कि 30 ही क्यों है, बट अगर हम लोग मैं सर्च करूंगा तो मैं आपको किसी दिन मेल भी कर सकता हूँ। इस चीज को मैंने करा नहीं, ये चीज ध्यान नहीं है, तो मतलब ये है कि 30 का रूल है ये, जैसे एज यूजुअल के 30, हाँ वो 30 भी इसलिए है, अगर हो सकता है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम की वजह से ही हो। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड, जैसे सैंपल है, सैंपल के से थंब रूल ये है कि कम से कम जितना भी पॉपुलेशन है उसका 10% लीजिए, 10%। अब 30, अब इसे आप सपोज करिए कि अगर 1 लाख की पॉपुलेशन में अभी 10% ले रहे हैं तो फिर तो बहुत छोटा हो जाएगा,
या पूरा इंडिया का अगर पॉपुलेशन है उसमें से 10% लें तो भी बहुत छोटा होगा। तो वो डिपेंड फिर करता है कि पॉपुलेशन इफेक्ट कैसा है। तो जो इसमें जो 68, 95 और 99 का जो रूल है वो ये है कि जो एरिया अंडर द कर्व है कि जैसे जैसे हम इसको सिग्मा को बढ़ाएंगे एरिया हमारा बढ़ता जाएगा, उसका चांस ज्यादा होता जाएगा। सही है सर। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। अच्छा 3 सिग्मा तक ही क्यों है ना सर? कि नॉर्मल की जो लिमिट है वो माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक है, तो माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होना चाहिए। ये 3 सिग्मा पे क्यों आके रुक गया? क्योंकि जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है उसको जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी फिर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये है कि 3 सिग्मा के बाद भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि वो 100% हो जाता है, इसलिए 99.7% लिखा हुआ है। 100% नहीं हुआ, 100% तो जितना आप जाते जाएंगे वो पॉइंट पे फिर बढ़ता जाएगा, कुल मिला के वही हो जाएगा कि इनफाइनाइट तक आप जाइए। हमारे पास 3 सिग्मा पे जाके फिर वो बहुत फ्रैक्शन पार्ट में उसका एरिया जो है बढ़ना स्टार्ट होता है, एकदम से पूरा फ्लैट हो जाता है, इसलिए 3 सिग्मा तक इसकी लिमिट है। So to be precise 95% of observation fall between these two values। अच्छा दूसरा ये था कि इसे जो 2 सिग्मा और दूसरा ये ले रहे थे कि 95 पे जो अल्फा जेड की वैल्यू होती है वो 1.96, तो इसको पूरा अप्रोक्सीमेट ले लिया उन्होंने 2 के लिए। सही है। इस तरीके से फिर किसी के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए सर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है कि जो हमने अगर 100 टाइम्स रिपीट किया या 20 टाइम्स रिपीट किया हुआ है तो उसमें से कितनी वैल्यूज जो है वो हमारी लिमिट के अंदर नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो सेंट्रल लाइंस के एक ही साइड में है, तो जो ये सेंट्रल लाइन जो है ये हमारी किस चीज की है? ये हमारा ट्रू मीन की लाइन है। सही है। तो अगर हम इसमें देख रहे हैं कि ज्यादातर मीन जो है वो जो इसकी एक लोअर लिमिट है एक अपर लिमिट है, तो ये ट्रू मीन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इस लिमिट के अंदर लाई कर रहा है, बट एक ऐसा भी कंडीशन है जहां पे ये लाई नहीं कर रहा है। तो ओनली 1 कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये 20 बार रिपीट किया गया, सिर्फ 20 टाइम्स इसको रिपीट किया है। 100 मेंस का सैंपल है इसमें, तो 20 में से 1 टाइम ऐसा आया कि इस वक्त ये ट्रू मीन को हिट नहीं किया, बाकी 20 में से 19 टाइम्स ऐसा है कि वो ट्रू मीन को हिट किया, यानी कि जो हमारी कॉन्फिडेंस लिमिट है उसके अंदर ट्रू मीन लाई कर रहा है। तो ट्रू मीन का जो लाई करना है मतलब जो लिमिट्स हैं वो हमारी एस्टिमेटेड हैं, तो जो एस्टिमेटेड लिमिट्स हैं उसके अंदर हमारी ट्रू वैल्यू हर बार हिट कर रही है, बट कुछ एक ऐसा टाइम भी होगा जिसमें नहीं करेगी, जैसे यहाँ पे एक बार ऐसा हुआ कि नहीं करा हिट। True mean was that like this one that observed means or by claimed means, सपोज करिए जैसे किसी पॉपुलेशन का एज एक क्लेम्ड है और उस क्लेम को आप अगर पहले से एस्टेब्लिश्ड है, प्रायर है पहले से, तो कोई वो रेफरेंस है और उसको आप जैसे जो टेस्टिंग करना चाह रहे हैं उसको तो उसको हम कहते हैं जो हमारा एस्टिमेटेड होता है। अवेलेबल नहीं हो तो कुछ ना कोई रेफरेंस तो होता ही है किसी न किसी चीज का, तो आप अपना ऑब्जर्व कर लीजिए इसे कि हम एक हमारा अपना, इसीलिए जो हमारी जो हाइपोथेसिस होती है उसको हाइपोथेटिकल वैल्यूज क्यों कहते हैं कि आपकी अपने तरफ से मानी हुई वैल्यूज है। जैसे सपोज करिए कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप अपना रिजल्ट तो एक अपने दिमाग में हो गए, भले ही आप किसी की उसको ना माने। पायलट स्टडी सबसे पहले देखिए किसी भी चीज की अगर नहीं है कोई, या तो पायलट स्टडी करेंगे या कोई रेफरेंस पढ़ेंगे या कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है तो आप एक हाइपोथेटिकल लेके चलेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, फिर कोई छोटा सैंपल लेके फिर चेक करेंगे, है ना। तो वो ज्यादातर यही होता है कि सबसे पहले जैसे कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें कोई पहले से एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे फिर हम एक छोटा सर्वे करके देखेंगे। जैसे कोई भी वैक्सीन होती है अगर बनाई जाती है तो पहले क्या होता है 3 लोग कम से कम या 2 या 3 लोगों को पहले वैक्सीन दिया जाएगा, फिर उसके बाद उससे को और बढ़ाया जाएगा, फिर और बढ़ाया जाएगा, जैसा जैसा उसका रिस्पॉन्स अच्छा कराएगा तब बढ़ाएंगे, नहीं आएगा तो कम से कम
जो भी कैजुअलिटी होगी वो 3 लोगों के लिए होगी, या उससे भी पहले क्या होता है कि एनिमल्स के लिए करते हैं तो एनिमल्स को होगी, है ना। तो वो वही सब स्टार्टिंग सैंपल से वहीं से इस तरीके से होती है। यानी हम लोग अपने लिटरेचर सर्वे में से या ट्रू मीन को कोट करके, और अगर हम कुछ भी सैंपल कर रहे हैं कोई भी फीचर को, तो हम उसके रेफरेंस में उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कोई भी कंपनी है क्लेम कर दिया, जैसे बाइक की कोई कंपनी है, वो कह रही है कि हमारी बाइक का जो माइलेज है 65 पर लीटर के हिसाब से है, तो अब उसने सैंपलिंग नहीं किया, भले ही चाहे उसने किया भी होगा, मगर कहा अगर आपको उसको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, आप अपने 4 दोस्तों की बाइक लेंगे, उसमें 1 लीटर तेल डाल के चला के देखेंगे, अगर 4 में से 2-3 का भी सही आ गया तो आप कहेंगे हाँ चलो भाई सही है। या हम लोग जिसे करते हैं कि अभी आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं तो रेटिंग देखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में रेटिंग अगर 3 पॉइंट है तो हम मान के चलते हैं हाँ थोड़ा सही है, चलो ये अच्छा होगा। तो ये सब क्या है, ये साइकोलॉजिकली वो देता है, इसीलिए वो रहते हैं कि स्टडी है इसकी सारी। क्लेम्ड मीन डिफरेंट होते हैं, तो आपको आप उसमें क्या होता है, उसमें जैसे क्या आप किसको बेटर मान के चल रहे हैं। जैसे कोई होता है कि ना किसी स्टैंडर्ड गोल्ड होता है, ऐसे स्टैंडर्ड गोल्ड के अलावा भी बहुत सारे लोग अपना क्लेम अलग रखते हैं, मगर एक मान के चला ही गया है कि तो ये इसके रेफरेंस में रहना चाहिए, है ना। तो अगर इसे किसी ने क्लेम एक बाइक में ही उसने अलग अलग उसमें एडवर्टाइजमेंट अलग अलग क्लेम किया हुआ है, सही है, तो फिर उसमें क्या है कि भाई अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, जो सबसे लोएस्ट होगा हम उसको लेके चलेंगे, क्योंकि हम रिस्क क्यों लें भाई। वो एक एडवर्टाइजमेंट उसने किया 75 जा रही है, एक में उसने क्या 68 जा रही है, एक में उसने कहा 71 जा रही है, एक में उसने कहा 65 जा रही है, तो हम तो 65 को मान के चलेंगे। अब 65 से ऊपर जितना भी देगा अच्छा होगा, मतलब जितना अगर ट्रू आ जाएगा वो हमारे लिए बेटर होगा। So what the confidence we will get is possible range of the values of the population parameters, the precision of the estimates. When the sampling variability is high, the confidence interval will be wide to reflect the uncertainty of the observations. So standard statistical significance, if the 95% confidence interval does not cross the null values, then it is significant at the 0.5% level of. तो जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में टेस्ट लगाने से पहले भी बहुत सारे जगहों पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस बेस के लेवल के बेसिस पे ही उन्होंने टेस्टिंग किया हुआ होगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आप निकाल के भी उसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। तो जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए हमने फीचर्स की मेजरमेंट कर ली जी, हमने मीन निकाल लिया, हमने एसटी निकाल लिया, और इसके बाद हम अगर डायरेक्टली ट्रू मीन को कंसीडर करके उसके बाद कॉन्फिडेंस लिमिट के साथ इसको अगर हम टेस्ट करते हैं, तो ये अपने में एक इन्फरेंस अपने में प्रॉपर हो जाएगा। हाँ, स्टडी है ना, कि हम जिसे ये कॉन्फिडेंस इन रेफरेंस टू दिस ट्रू मीन। क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल कहाँ पे काम नहीं करता है, जिसे जब हमारा मोर देन 1-2 ग्रुप्स होता है, तो हमको ये नहीं पता चला कि कौन 2 ग्रुप सेम है कौन सा ग्रुप डिफरेंट है कॉन्फिडेंस इंटरवल से, तो फिर उसमें जो है फिर हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस लगाते हैं, या फिर जो पेयर वाइज कंपैरिजन जो लगाते हैं, तो उसमें फिर हमको पेयर वाइज कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना पड़ेगा, और वो हो सकता है कि कुछ टाइम में ओवरलैप कर जाए। ओके, ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। और ये जेड वैल्यूज के लिए कुछ कॉन्फिडेंस इंटरवल है, उसकी जेड वैल्यूज हैं, तो ये तो नॉर्मली आपको हर जगह मिल जाएंगे, इसमें कोई इतना वो नहीं है, ये कुछ वैल्यूज के लिए निकाल के दिखाया गया है। फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम लोग आते हैं, अगर कि द मीन विटामिन डी मिडिल एज्ड एंड ओल्डर यूरोपियन मैन इज लोअर देन 100, ओके, इस अवर डिजायरेबल मीन है, देन इज कंसिडर्ड फंक्शन कोरिलेटेड विद द विटामिन डी। सो किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करके करेंगे, जैसे क्या कि हमने पहले मीन हमारा एज्यूमिंग दैट द मीन इज इक्वल टू 100, दिस इज द हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, this is usually the straw man that we want to shoot down. So determine the distribution of states assuming that the null hypothesis is our true. So अगर null hypothesis true का मतलब ये है कि हमने मान के चले कि हमारा मीन जो है 100 है, तो उस मीन के बेसिस पे हमने क्या करा है, सिमुलेशन किया है 1000 टाइम्स, और 10,000 टाइम्स सिमुलेट करने के बाद में हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रू मीन जो है वो उसके पास में है। ट्रू मीन हमारा कितना था, 62 था, जो इस स्टडी में जो ले रहे थे, सही है। अभी हमने हाइपोथेटिकल मीन कितना माना है, 100 माना है, सही है। तो हमने ये 10,000 सिमुलेशन किया है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका देखेंगे नॉर्मली है, बट मीन कहाँ पे लाई कर रहा है, अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो
क्योंकि नॉर्मली है तो जो मीन मीडियन मोड होगा तो इसका मतलब जहां पे पीक है वहीं के आसपास मीन होगा। तो ये मीन जो हाइपोथेटिकल मीन है, यानी 10,000 टाइम्स सिमुलेशन करने के बाद भी जो ट्रू मीन के कहीं भी आसपास भी नहीं भटक रहा है, एक बार भी नहीं आया। एक बार अगर एक बार भी किसी टाइम अगर यहाँ पे आया हुआ होता तो एक कोई चांस होता कि हाँ हमारा ट्रू है। तो अब इसको सिर्फ इतनी सिमुलेशन करने से हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसमें पी वैल्यू क्या होगी? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई क्योंकि कोई भी बार नल हमारा मीन जो है ट्रू मीन के आसपास भी नहीं भटका, तो उसमें पी वैल्यूज क्या हो जाएगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट लिखेंगे नल, तो क्या पी वैल्यू हमारी किस लेवल कितनी होगी? डबल जीरो से भी बन चला जाएगा, क्योंकि एक बार भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या, 1 डिवाइड बाई 10,000। एक मिनट, जैसे ये जो मैं इससे पहले वाला थोड़ा मैं और दिखा देता हूँ। ये था कि हमारा ट्रू मीन जो था वो 62 है, बट एक हाइपोथेटिकल मीन हमने माना है और उसमें हमने लिया है स्टार्टिंग बाय अज्यूमिंग दैट द मीन इज 100। सो दिस इज अवर नल हाइपोथेसिस। अब इसके लिए फिर हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करी। तो उससे पहले हमने क्या करा है कि इस मीन को ट्रू मान के, इस मीन को ट्रू मान के, यदि 100 हमें मान के चले मीन है, और हमने सिमुलेशन किया 10,000 टाइम्स, यानी कि डेटा को हमने सिमुलेट किया, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि 10,000 में से कितनी टाइम्स हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रू मीन के आसपास है। तो जो सिमुलेशन करके प्लॉट हमने किया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तो एक तरीके से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इसका मीन कहाँ है, 100 टाइम्स है। तो इन सारी सिमुलेशन में 10,000 सिमुलेशन में एक बार भी हमारा मीन इधर कहीं आसपास 62 के आसपास नहीं आया। अगर एक बार भी आया हुआ होता तो हम कह सकते थे कि कोई एक चांस तो है 10,000 में कि हमको जो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट हो जाए, है ना, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाए। तो हमारा नल हाइपोथेसिस सीधा सा रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अब इसका पी वैल्यू मैं बता रहा हूँ, नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो हमारा ट्रू मीन जो है वो कहीं भी इस पे नहीं आ रहा। 100 हमने माना, इनका मान के चले थे, मगर यहाँ पे जो हम इसका जो मीन जो हमारा नहीं, सॉरी, ये जो हमारा जो ट्रू मीन है 62 है, वो हमारा ट्रू मीन था, और जो हम नल हाइपोथेसिस में लेके चले थे उस 100 लेके थे, तो 100 है हमारा इसका, इसके लिए सही है। तो जो पी वैल्यू हमारी निकल के आ रही है, और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि मीन जो हमारे लेके चले थे और स्टैंडर्ड डिविएशन जो हम लेके चले थे, अब हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो रहा है, मैं ये पूछ रहा था। तो रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है? एक्सेप्ट हो रहा है। न्यू दैट टू सॉरी नल हाइपोथेसिस ट्रू मीन 62 है और ये 100 है, तो ये रिजेक्ट हो रहा है। ये रिजेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये देखो सही है। पी वैल्यू की जो मैं बताना चाह रहा था वो तो एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, सही है। So it didn't happen in 1,000 simulated, that is so the probability is less than 1 divided by 10,000. नल हाइपोथेसिस हमारी 100 जो थी, हाँ, तो एक्सेप्ट कब होती है, ट्रू मीन के पास आती। ट्रू मीन के नहीं, वो तो जैसे नल हाइपोथेसिस जो यहाँ पे हमारी थी 100 मीन्स जो हम लेके चल रहे थे, तो वो 62 है, नल हाइपोथेसिस आपने 100 मानी है। हाँ, आपका जो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका 100 पास हो जाएगा, ये आपका 100 के पास आ रहा है, ट्रू मीन के पास नहीं आ रहा ना ये। तो नल हाइपोथेसिस आपने 62, अब ट्रू मीन के पास आती है, नल हाइपोथेसिस तब आपसे एक्सेप्ट होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसमें अगर हमने लेस देन, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से मैं दिखाता हूँ फिर से, मैं कहाँ से गड़बड़ कर दिया। Is the mean vitamin D in middle east and older even lower than 100? लोअर देन 100 है। लोअर देन 100 है। अब आपने नल हाइपोथेसिस 100 मान रखी है। अब नल हाइपोथेसिस हमने लोअर देन 100, तो हमने नल हाइपोथेसिस को क्या कहा, या तो ग्रेटर देन 100 या फिर इक्वल टू 100, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 मान के चले हैं। तो अगर हम उसको 100 मान के चल रहे हैं तो हमारा क्या है कि वो जो सिमुलेशन का मीन आ रहा है वो भी 100 के आसपास आ रहा है, आसपास आ रहा है, तो 100 है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई, एक्सेप्ट हो गई। हाँ, तो लेस देन 100 नहीं है, लेस देन 100 नहीं है, 100 के आसपास आया। हाँ
हाँ नहीं वही कि अल्टरनेट जो हमारी थी कि लेस देन 100 नहीं है मीन कोई भी। वो तो आपने अल्टरनेट दे दिया ना। हाँ अल्टरनेट हमारा रिजेक्ट हो गया। मैम क्लियर होगी बात? अच्छा देखिए सही है। So because we know the normal curves works, we can exactly calculate the probability of seeing an average of 63 means if the true average weight is 60. So if we have null hypothesis is true. अब ये मैं कर रहा हूँ जो उसके थ्रू से फॉर्मूले के बेसिस पे जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है जेड वाला। तो ट्रू मीन हमारा 63 था, हाइपोथेटिकल मीन हमारा 100 है, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा स्टैंडर्ड एरर जो है हमारी 3.3 है सिग्मा वैल्यू। सो ये अगर हमारा 11.12 आ रही है। अब हमारे अगर हम 5% भी ले रहे हैं तो 5% पे जो इसकी वैल्यू होती है जेड अल्फा की वैल्यू जो होती है 1.96 अगर 2 टेल टेस्ट है हमारा, तो उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा ये ग्रेटर देन जा रहा है। सही है। तो जेड तो पी वैल्यू इज लेस देन 0.0 वही सेम उसमें भी आ रहा है। तो दोनों तरीके से। अच्छा फिर पी वैल्यूज को कितने लोग अंडरस्टैंड करते हैं सर? पी वैल्यूज क्या होती है? क्योंकि पी वैल्यूज जो हम मैनुअली कैलकुलेट नहीं करते हैं कभी भी। नहीं इससे जैसे अगर हम कोई भी जितनी भी कैलकुलेशन करी वो हमने जो सिमुलेशन को छोड़ के जेड टेस्ट जो हमने लगाया वो मैनुअल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। बट मैनुअल कैलकुलेशन में जो है क्या होता है कि हम एक हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू होगी और एक हमारी टेबलेटेड वैल्यू होगी। तो टेबलेटेड वैल्यू जो होती है किसी भी टेस्ट के थ्रू वो हमारी कंप्यूटर बेस्ड निकाली हुई वैल्यू होती है, ऑलरेडी गिवन होती है ना सर। तो पी वैल्यू जो है इसी तरीके से पी वैल्यू जो है वो मतलब किसी कोई इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो या कुछ कर दो ऐसे नहीं निकल के आएगी। पी वैल्यू भी हमको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर जब भी आप कभी सॉफ्टवेयर से कोई एक्सपेरिमेंट रन करेंगे वो साथ में पी वैल्यू देगा। अगर मैनुअली निकालना पड़ेंगे तब आपको इनवर्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से निकालना पड़ेगा। सही है। तो पी वैल्यू जो होती है पी वैल्यू जो है कि नॉर्मली हम इसे जो कंपेयर करते हैं कैलकुलेशन वाली बेस में, जैसे कैलकुलेटर अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम सीधा सीधा टेबलेटेड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, पी वैल्यू से कंपेयर नहीं करते क्योंकि पी वैल्यू हमारे पास होती ही नहीं है। बट जब भी हम कंप्यूटर बेस अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली पी वैल्यू देता है और फिर उस पी वैल्यू को जो है हम क्या करते हैं किससे कंपेयर करते हैं? नहीं सर, पी वैल्यू को फिर किससे कंपेयर करके देखते हैं हम? जैसे पी वैल्यू अगर आपकी 0.04 आई है तो आप इसको किससे कंपेयर करेंगे? कंट्रोल से करते हैं तो यहाँ पे ट्रू से करेंगे। अगर पी वैल्यू आपकी लेस देन हो रही है मतलब किस चीज से लेस देन, वही मैं पूछ रहा हूँ सर। कॉन्फिडेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको हम कहते हैं, साइज ऑफ टेस्ट जिसको हम कहते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। सही है। तो उससे कंपेयर करते हैं। तो उससे जो हम कंपेयर कर रहे हैं यानी कि एक चीज हमने पहले से फिक्स कर दी है। क्या चीज? अल्फा की वैल्यू। उस अल्फा की वैल्यू को फिर हम पी वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। तो पी वैल्यू से ही हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं? मैं ये पूछा पी वैल्यू क्या है एक तरीके से। एक तो देखो मैं ये तो पी वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी है, बट प्रोबेबिलिटी किस चीज की है? प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी अल्फा भी प्रोबेबिलिटी होता है। अल्फा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। तो वो भी प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं। वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमने फिक्स कर दी, वहां पे अपनी प्रोबेबिलिटी क्या कर दी? फिक्स कर दी कि 0.05। यहाँ पे पी वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है। तो ये क्या चीज है फिर? अगर ये निकल के आ रही है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इसको निकाल के दे रहा है, तो ये क्या है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको इस तरीके से देखेंगे तो जैसे 5% फिक्स करने का मतलब क्या होता है कि 5% फिक्स करने का मतलब ये हुआ कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं, 5% एरर है 5% एरर है कि हमारा जैसे एडजस्टमेंट हो सकता है कि मतलब जैसे हमने जैसे कॉन्फिडेंस में आपको बता रहे थे कि 95% टाइम्स ऐसा होगा ट्रू वैल्यू को हिट करेगा, 5% फिर ऐसा हो सकता है कि ट्रू वैल्यू को हिट ना करे। वही कॉन्सेप्ट है कि हम पहले से फिक्स करके चल रहे हैं अपनी एरर को। तो अगर आप कब बेटर होंगे, आप कब कितने सही, आप तो ये चाहेंगे, कम आएगी तो हाँ आप ये चाहेंगे कि मैं तो 100% सही हो जाऊं, आपको रिड्यूस होना चाहिए। तो फिर जो अल्फा है वो रिड्यूस होना चाहिए। सही है। बट हमको पहले से नहीं पता है कि हम कितने सही होंगे, तो इसीलिए हम उसको फिक्स कर देते हैं 5% कि हम 5% के कॉन्फिडेंट हैं कि 99% सही होंगे, फिर भी 5% होंगे। पी वैल्यू जो है वो लोएस्ट एरर है, यानी कि आपका मैक्सिमम कॉन्फिडेंस है
कि इसे जितना जितना मैक्सिमम हो सकता है वो आपको उतना बताएगी। तो पी वैल्यू जो क्या है, लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। बस इतना पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि पी वैल्यू जो है वो आपका मैक्सिमम कॉन्फिडेंट या कह सकते हैं या लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। इसके ऊपर एक बेहतरीन डिबेट जो मिली, मैंने उसको बस सीधा कॉपी पेस्ट यहाँ पे मारा हुआ है, जो अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन की है। तो पहले हम पी वैल्यू को थोड़ा और देख लें, फिर उसके बाद मैं उसको लाता हूं कि स्मॉल पी वैल्यू मींस द नल वैल्यू इज लाइकली गिवन our data are so unlikely given the null hypothesis that is less than 1 point this one, so that I am going to reject the null hypothesis but don't want to reject our data. So the probability of seeing what we saw or something more extreme कि कितना और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हमारे सही होने की, if the null hypothesis is true due to the chance y. So p-value conventions or p-values of the 0.05 are often accepted in statistically significant in the medical literature. What this is an arbitrary cutoff value? Yes, a cutoff of p 0.05 means that in about 5 out of 100 experiment a result would appear significant just by chance. That is a type 1 error. They have released a statement about the significance and p-values or misuse of the p-values. Just silently you can read this one and then think what they are saying. ओके, सो जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा। देखिए इसमें इनका जो कहने का वो है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पी वैल्यू सिर्फ इटसेल्फ ये नहीं है कि आप पी वैल्यू के बेस पे सिर्फ सारा कंक्लूजन कर दें। इसीलिए जो स्टेट्स में हम लोग लिखते हैं, जो भी स्टेट्सिन अगर इस चीज को जानता है वो लिखेगा, कभी नहीं लिखता है we rejected the null hypothesis, we fail to reject the null hypothesis लिखेगा, सही है। और our data is have not sufficient evidence to reject the null hypothesis। तो उसका मतलब ये है सीधा सीधा कि हो सकता है कि हमने जो सैंपल लिया है वो थोड़ा सा छोटा है
और अगर बड़ा सैंपल होता तो और बेहतर कंक्लूजन दे सकता था, सही है। या फिर और भी बहुत सारे रैंडम कोई ऐसी एरर हो सकती है, कोई ऐसा चांस हो सकता है, बट डायरेक्टली हम उसको सीधा सीधा नहीं लिखेंगे, हम रिजेक्टिंग एच नॉट और वी आर नॉट रिजेक्टिंग द एच नॉट और वी एक्सेप्टिंग द एच वन, सही है। बट पी वैल्यूज के बेसिस पे सिर्फ पी वैल्यू के बेसिस पे कह देना कि हाँ सब कुछ खत्म हो गया, ये नहीं है। इसीलिए इन्होंने पूरा एकदम बाकायदा प्रेस रिलीज है इस तरीके का कि बहुत सारा लिखा है कि एक तरीके से वो पी हैक हो गया है कि अगर पी वैल्यू के बेसिस पे सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट कहा हुआ है तो आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, अगर उसमें इनसिग्निफिकेंट है, बाकी बेहतर रिसर्च है, सब कुछ है, बट अगर एक्सेप्ट नहीं हुई है आपकी हाइपोथेसिस या रिजल्ट आपका रिजेक्ट है या एक्सेप्टेड, अगर उसके सिग्निफिकेंटली अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर उन्होंने बहुत सारे कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं उसमें अपने सजेशंस में किस तरीके से हम उसको वो कर सकते हैं। तो इसको मैं तो कहूंगा कि ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 पेज का है शायद ये पूरा प्रेस रिलीज आर्टिकल्स जो है। आप इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन के उस पे से डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, पढ़ें और उसमें बेहतर आपको और अच्छा लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स जिसे लिखे हैं कि कैसे क्या क्या पॉइंट्स हम कभी भी जैसे टेस्टिंग ऑफिस कर रहे हैं अगर तो वो हम लेते हैं। जैसे ये नॉर्मली तो वैसे तो स्टूडेंट बेस्ड तरीके से हैं और इन स्टेप्स को अगर फॉलो करके किस तरीके से टेस्ट अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो है अब हम देखेंगे एजम्पशंस कि क्या एजम्पशंस हैं, तो हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, कौन सा नहीं अप्लाई करेंगे, सही है। जैसे अगर हमारा पॉपुलेशन, अगर हम मीन के लिए हम देख रहे हैं, हम टेस्टिंग कर रहे हैं सिंगल मीन का, और पॉपुलेशन अगर हमारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सैंपल साइज हमारी इनफ लार्ज है दैट इज ग्रेटर देन 30 है, और पॉपुलेशन वेरिएंस अगर हमारा नॉन है, अगर ये 3-4 कंडीशंस अगर हमारी होल्ड कर रही हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल जेड टेस्ट हम अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। जिसका फॉर्मूला अलग अलग दोनों के लिए, सिंगल के लिए और डबल के लिए दिया हुआ है। सो इन केस population variance or standard deviation is not known, we can use the estimate of this one only. Okay, तो estimate मतलब जो हम सैंपल का एस्टिमेशन वेरिएंस का फॉर्मूला है वो लगाएंगे, और उसके बाद में डबल के लिए भी हम उस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत इतना ज्यादा है नहीं। फिर उसके बाद में टू सैंपल के लिए क्या है कि टू सैंपल के लिए वही है, सीधा सीधा एस्टिमेट करके और उसको हम कंबाइंड या पूल्ड निकाल सकते हैं। फिर तीसरा दूसरी कंडीशन हमारी है कि जब पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सैंपल साइज अगर स्मॉल है दैट इज लेस देन अगर 30 अगर हमारा है, और पॉपुलेशन वेरिएंस अगर अननोन है, व्हाट द पॉपुलेशन वेरिएंस अज्यूम इक्वल इन केस टेस्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स, अगर हम डिफरेंस ऑफ मीन की अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं ओके। सो तो इसमें क्या सिर्फ दो कंडीशन हमारी चेंज हुई जो अभी पहले मैंने आपको बताई थी। एक तो हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन हो गया, दूसरा हमारा सैंपल साइज स्मॉल हो गया। तो स्मॉल में यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे हम 30 लेस देन 30, मोस्टली हम 30 को फॉलो भी करते हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, यूज करेंगे टी टेस्ट को, सही है। अब चाहे वो सिंगल की पॉपुलेशन का हो या फिर डबल पॉपुलेशन हो, इसी में ही अगर हमारा सैंपल रिपीटेड है यानी कि सैंपल जो है हमारे डिपेंडेंट है, सही है। जैसे कि पॉपुलेशन सेम है, उस पर 2 बार कोई टेस्ट अप्लाई किया गया, तो एक बिफोर मेजरमेंट लिया गया, एक आफ्टर मेजरमेंट लिया है, तो फिर हम उसमें चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं पेयर टी टेस्ट या रिपीटेड मेजर एनालिसिस हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो भी चाहे सिंगल से पॉपुलेशन हो, चाहे सॉरी उसके लिए तो दो ही पॉपुलेशन हो, 2 सैंपल हो जाएगा, जिसको हम पेयर्स इन 2 सैंपल्स कहते हैं, ठीक है। फिर प्रोपोर्शन का है कि अगर प्रोपोर्शन की पॉपुलेशन है, जैसे कि रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, सैंपल साइज लार्ज है, और तो किसको फॉलो कर रही है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उसमें जो है प्रोपोर्शन जो है हमारा प्रोपोर्शन का निकाल के सैंपल हम और जेड टेस्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब प्रोपोर्शन में सिंगल टेस्ट या डबल टेस्ट, और दूसरा है कि जो अभी मैंने टी टेस्ट में एक हमने एज्यूम किया था कि वेरिएंसेस इक्वल वेरिएंसेस का,
सही है। तो अगर वेरिएंसेस इक्वल को हम अगर हमको टेस्टिंग करना है तो फिर हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर, सिंगल के लिए काई स्क्वायर यूज कर लेंगे, और टू सैंपल्स का है तो उसके लिए फिर हम एफ टेस्ट यूज कर लेंगे कि सीधा होमोजेनिटी, वेरिएंसेस होमोजेनिटी अगर हमको देखना है तो फिर हम उसके लिए टी टेस्ट सॉरी काई स्क्वायर फॉर सिंगल सैंपल, फॉर टू सैंपल वी कैन यूज द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग जस्ट ओनली द रेशियो ऑफ द टू वेरिएंसेस का। सही है। तो ये तो पूरा पैरामीट्रिक में 3-4 टेस्ट हैं जो हम अप्लाई करते हैं, और मैं एक टेस्ट था जो मैं करना चाह रहा था पर नहीं हो पाया, एनोवा वाला, तो उसको मैं कल कवर करूंगा, एनोवा वाले और नॉन पैरामीट्रिक को यूज करेंगे। तो जितने भी हमने पैरामीट्रिक करे हैं इसमें से एक सिर्फ काई स्क्वायर का, जैसे जो मैंने देखा, काई स्क्वायर बेसिकली आता है नॉन पैरामीट्रिक में। सही है। बट टेस्टिंग फॉर होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंसेस सिंगल वेरिएबल के लिए जो है हम काई स्क्वायर को यूज करते हैं नॉन पैरामीट्रिक में। गुडनेस ऑफ फिट के लिए, क्या है वो, गुडनेस ऑफ फिट का मतलब जिससे क्या है कि अगर हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है और वो उसका ऑब्जर्व हमको पता है, थ्योरेटिकल हमको पता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के हम उसका फिटिंग देख सकते हैं, जैसे नॉर्मल का है या तो आपका बाइनोमियल का है, पॉइसन का है, या फिर जैसे सपोज करिए कि जैसे हम कहते हैं कि कॉइन को हमने टॉस किया हुआ है 250 टाइम्स 300 टाइम्स, तो ये अनवाइज्ड कॉइन है या वाइज्ड कॉइन है, इस तरीके की गुडनेस ऑफ फिट में आता है। मतलब अगर हमारे पास कोई, तो फिर से यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म आया और पहले वाले में टी टेस्ट में डिपेंडेंट टर्म आया, डिपेंडेंट टर्म आएगा तो वो होगा पेयर टी टेस्ट का केस। हाँ वो क्या था, एक बार डिपेंडेंट कब होगा? पेयर का मतलब, डिपेंडेंट का मतलब जैसे ये है, पेयर टी टेस्ट में जब हम लगाते हैं तो इससे क्या है कि एक पॉपुलेशन सेम रहेगा। पॉपुलेशन से मतलब ये जो सैंपल है, जैसे सपोज करिए एक ही है। पॉपुलेशन से मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो भी हम जिसपे अप्लाई कर रहे हैं, ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एक पॉपुलेशन है, ये आपका एक जो सैंपल है उसको आपने एक ट्रीटमेंट दिया, और फिर उसी सेम ऑब्जर्वेशन को, सेम पॉपुलेशन को आपने दोबारा एक कोई ट्रीटमेंट हाई डोज का दिया, अब उसमें आप डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। सही है, किसी डिजीज को लेके। सही है। तो या फिर जैसे समझ करिए कि एक टेस्ट हम ले लेते बिना आपको कुछ भी ट्रेनिंग दिए हुए, स्टेट्स की नॉलेज के बारे में। अब 1-4 दिन की नॉलेज देने के बाद, स्टेट्स की नॉलेज देने के बाद हम आपका स्कोर लेना चाह रहे हैं या कुछ लेना चाह रहे हैं, तो ये क्योंकि ऑब्जर्वेशन सेम है, बस 2 ट्रीटमेंट अब 2 बार हमने दिया हुआ है, तो बिफोर आफ्टर करके जैसे कर कह सकते हो, तो इसमें हम पेयर टी टेस्ट लगाते हैं। तो इसको हम रिपीटेड मेजर्स भी कहते हैं या पेयर सैंपल भी हम कहते हैं। सही है। तो मान लीजिए हम लोग कोई क्वालिटी कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ हमारा एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, हाँ और हम उसमें से कुछ फीचर्स देख रहे हैं, हाँ। तो हम उसमें टी टेस्ट नहीं, हम उसमें काई स्क्वायर लगाएंगे। काई स्क्वायर आप क्यों लगाएंगे उसमें, मतलब इस यहाँ से आपको इससे लग के क्यों ऐसा लग रहा है कि इसमें हम काई स्क्वायर लगाएंगे? देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी काई स्क्वायर आपको बताया है, इसलिए कंप्लीटली कि काई स्क्वायर नहीं है। काई स्क्वायर का जो मेन वो है वो नॉन पैरामीट्रिक में है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि काई स्क्वायर को हम सिर्फ गुडनेस ऑफ फिट के लिए यूज कर रहे हैं, और या फिर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस के टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। जैसे हमने टी टेस्ट में जो अपने एज्यूम किया था, यहाँ पे अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सही है, बट द पॉपुलेशन वेरिएंस एज्यूम इक्वल इन केस टेस्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स। सही है। तो अगर पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल नहीं है, अगर ये तो हम एज्यूम कर रहे चल रहे हैं, तो हम ये टी टेस्ट लगा रहे हैं। सपोज करिए ये एज्यूम्पशन जो है आपको टेस्टिंग करके करना है, तो इसको टेस्टिंग करने के लिए अगर सिंगल वेरिएबल है और सिंगल पॉपुलेशन है, हमारी सिंगल सैंपल है, तो हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे इस एज्यूम्पशन को टेस्ट करने के लिए। सही है। अगर 2 पॉपुलेशन का केस है, हमारा 2 सैंपल का केस है, तो फिर हम एफ टेस्ट लगाएंगे। बस ये है। बाकी काई स्क्वायर का जो है पूरा जो हम बताएंगे पूरा नॉन पैरामीट्रिक में, जो कैटेगोरियल वेरिएबल वगैरह के लिए जो है, जिसमें हम बताएंगे ये कंटीन्यूअसी टेबल 2/2 का 2/n का जो होता है, उसमें उसको यूज करते हैं। सही है। तो पैरामीट्रिक से रिलेटेड एनोवा को छोड़ के अगर कुछ और हम लोगों को डिस्कशन करना हो तो कर सकते हैं यहाँ पे।